What's up, YouTube? Welcome back again with another new video and another new vlog. So looking fresh and beautiful than before. मेरा काफी बाल बढ़ चुका है. It's looking thick if you can see. काफी growth हो चुकी है. And if you guys are doubting कि ये मेरा नकली बाल है, it's not my नकली बाल, असली बाल है. मुझे लगता है मैंने क्या किया है. Of course, when you are on diet या competition prep होता हो तो of course हम थोड़ा कुछ चीजें लेते हैं supplements, तो उसके वजह से हेयर फॉल होने का चांसेस ज्यादा होता है. बट नाउ इट्स माई ऑफ सीजन, में नहीं ले रहा हूँ कुछ भी. बट आई थिंक दुबई में यूजुअली हेयर का बहुत दिक्कत होती है. बट आई बीन नॉट यूजिंग वाटर जो नॉर्मल टैप में आता है. आई एम यूजिंग द बिस्लरी वाटर जस्ट टू वॉश माई हेयर. And so that is kind of helping me, I think so. So Dubai में आप लोग है कोई भी, and if you guys are watching this video, try to use Bisleri filtered water to wash your hair. It might help you. So yeah, I mean, I do that and I wash my hair twice. दो महीने में 2 बार मैं धोता हूँ with shampoo, conditioner and stuff. So it's kind of helping me and not ruining my hair. So मैंने जैसे बताया था on my last vlog में that my diet has changed थोड़ा सा. So I'm not, वो जो bloating था body में, वो sluggish feeling था, वो सब चीज़ें कम हो चुका है. And I am in a state जहाँ पर feeling very very good, at the same time full and round also. At the same time my weight ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, सिर्फ 2 किलो water weight drop हुआ है, which is acceptable. ये संडे को there was भारत प्रो शो, मजा आ गया देख के. मतलब क्या होता है कि whenever you see, first of all I want to congratulate Manoj and Amit and all the athletes, okay, who competed and who gave their best. I think everybody was on in this show, and especially congratulations Manoj for winning his Olympia ticket to for this 2025. I'm sure whoever is standing on that stage, trust me guys, हम लोग जज कर लेते हैं कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं दिख रहा है. इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कभी कभी लोग अच्छे दिखते हैं ऑन दैट डे, एंड समटाइम यू लुक बैड बिकॉज ऑफ, नॉट बैड, आई मीन यू लुक कंपैरेटिवली like different from other guys. So that's why you lose or place second or third, whatever placing you get. So I think after that show kind of I felt कि मुझे काफी motivation मिला. I'm like yeah, it's going to be like now 7 to 8 months that I haven't competed. So जैसे मैंने बताया था, I will be competing once I make the improvement. So let's see how that goes. I don't have any rush, मुझे कोई rush नहीं है. I just want to step on stage with confidence that कि मैंने improvement किया है. At the same time आप लोग जब भी मुझे देखोगे, you should be like fuck यार क्या करके आया. So there's a lot of process. जैसे मैं आया था दुबई में, it was like not easy, it was difficult, and now it's kind of going good. I mean, it's all about the mindset. अगर आप लोग चाहते हो आपका अच्छा हो, think about that good. और हर चीज एक opportunity रहता है to get better. Sometimes difficult situations are there. किसी के भी life में situation is never going to be good and like always funny and happy. तो एक दिन है तो रात भी होगा, अगर रात है तो दिन भी होगा. So people, if you are thinking that, I mean, I have been through all the time. So whenever मेरे जिंदगी में कभी कुछ मतलब सैड सा या अच्छा नहीं होता है, आई नो दैट आई एक्चुअली गेट हैप्पी दैट टाइम, बिकॉज मुझे पता है कि ये फेज अभी जाएगा, फिर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा. सो दैट कीप्स मी रेडी एंड हम्बल्ड ऑल्सो कि अच्छा भी जब भी होगा, बी लिटिल काम एंड कंपोज्ड, बिकॉज उसके बाद तुम्हारा खराब भी होने का चांसेस है, बिकॉज इट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट इज. एंड ऑल्सो तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन अच्छे लोग हैं, यू विल गेट टू नो. दैट कैन बी योर वाइफ, फ्रेंड्स, your daughter, son, your parents, anything can be there. So society, don't give a damn about that. Think about your family, your close ones. Give a damn about them because you need those people. So that being said, अभी मेरा pre-workout meal लेने वाला हूँ. That's going to be our rice. You see, it's going to be our rice and some chicken. Yeah, so it's going to be that chicken and rice pre-workout meal. सोचा था आज वर्कआउट में legs होगा, but unfortunately legs नहीं है. We'll be doing a push session only. So ये session जो push का होगा, it will be basically shoulder भी प्रायोरिटाइज करेंगे. सो पुश में सेशन 2 करता हूँ. एक होता है चेस्ट एंड ट्राइसेप वाला, फिर एक होता है शोल्डर एंड चेस्ट.
चेस्ट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो वीक एरिया है. सो उसी के लिए विल बी डूइंग 2 chest exercise and 4 shoulder exercise. शोल्डर मेरा डोमिनेटिंग करता है तो आई ट्राई टू प्रेफर डूइंग जैसे इंक्लाइन प्रेस किया मैंने एंड उसी के साथ में मैंने कुछ फ्लैट प्रेस या डंबल फ्लाइज कुछ कर लूँगा. सो प्रायोरिटाइज यही है कि जो सेकंड चेस्ट एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा और रेप रेंजेस अराउंड 12 to 15 के इसमें रहेगा. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा. So if you see, What do you want me to do? Can you do some? so if you see, मैं वर्कआउट से पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे वीडियोस देखता हूँ और जो भी मसल मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसके बारे में आई ट्राई टू वॉच फ्यू ऑफ द वीडियोस. तो मतलब ये जो वर्कआउट के पहले वाला जो एक घंटा जो रहता है, इट्स अ प्रेप सेशन. मैं बताऊँगा गेटिंग रेडी, उस जोन में आना कि आज प्रिपरेशन टाइम होता है. सेइंग दैट प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. उसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से किया है सो यू विल गेट गुड रिजल्ट एंड यू विल अवॉइड पुअर परफॉर्मेंस. सो आई थिंक ये काफ़ी सालों से मैं करता हूँ. जो भी आज ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो तो आई ट्राई टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू मतलब होमवर्क करना चाहता हूँ मैं. मुझे पता रहता है कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, बट वी एज ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव तो रहने की कोशिश करते हैं बट उसी के साथ में हम बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें जो प्रॉब्लम है, पैसे के, लोगों के, दुश्मन, जेलसी, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में आता है. और अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, हम इंसान नहीं है, फिर यू कैन बी नोन एज गॉड और समथिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं होता है, उस पर हम बहुत फोकस करते हैं एंड विच इज़ आई थिंक यू कांट अवॉइड दैट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. तो जब ऐसा होता है तो मुझे पता है कि दिस इज़ माई मेन इवेंट फॉर द डे. मुझे पता है कि मेरा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे दिन का. उसके साथ में जो डाइट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. तो ट्रेनिंग ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा मिलेगा जिम में जाके करने के लिए. उसके अंदर मैं अगर थॉट प्रोसेस में क्या करने वाला हूँ वो सब जाके उधर सोचूंगा तो आई एम काइंड ऑफ वेविंग ऑफ माई क्रूशियल टाइम. तो मैं नहीं वो करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू मेक श्योर दैट कि वर्कआउट से पहले 1 घंटा एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं बैठ के वीडियोज़ देखूँ जो करना है. उसके बाद मेरे पास ऐसा एक बुक है. सो वो जो बुक में मैं सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ और सारी चीज़ें लिख के जो पहला सेशन मैंने किया था वो मैंने कैसा किया था, क्या वेट से किया था, कौन सा एक्सरसाइज किया था. अगर कुछ पिछले हफ्ते मुझे अगर एक्सरसाइज नहीं पसंद आया या मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिला या मुझे कुछ इंजरी प्रोन वाला ऐसा कुछ फील लगा तो मैं लिख के रख देता हूँ ताकि अगले हफ्ते व्हेन आई ट्रेन दैट या नेक्स्ट सेशन मेरा जो होगा जब मैं ट्रेन करूँगा तो आई विल ट्राई टू लुक ऑन टू दैट. और वो चीज़ मैं दिमाग में रख के आई विल नॉट ट्राई टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक ऑन दैट डे. सो इट्स टाइम फॉर द वर्कआउट. अगर आप लोग देखेंगे ये टी शर्ट इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टी शर्ट. पिछले आई थिंक ये मैंने लिया था कोरिया से. 2 साल हो चुका है लेके. काफ़ी पतला है, काफ़ी इट्स वेरी थिन क्लॉथ. अगर ये मुझे दुबई में मिला तो मैं 10 ऐसा ले लूँगा बट आई हैवंट फाउंड ऐसे क्वालिटी का एंड ऐसा वाला कपड़ा अभी बहुत टाइम हो गया मैंने कभी देखा नहीं है. अगर मुझे दिखा तो आई विल बाय. अगर आप लोगों को अगर पता है कहाँ पर मिल सकता है ऐसा तो प्लीज़ डू लेट मी नो. आप धोने के टाइम पे आप वॉशिंग मशीन में भी डालोगे तो यू कांट वॉश इट फॉर लाइक मोर देन 15-20 मिनट्स. मैं हो सके तो मैं हाथ से ही धोता हूँ मैं बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है स्पेशली टू वर्कआउट. इट्स वेरी थिन, इट्स वेरी लाइट. मैं बाहर भी जाता हूँ तो आई वुड लव टू वेयर दिस बट अभी ये 1-2 साल से मेरे पास है. फेंकने का मन भी नहीं है. बीच में आई थिंक 1-2 ऐसे छोटे छोटे होल्स हो गए बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल एंड थिन क्लॉथ और मैं हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार मैं पहनता ही हूँ. आई हैव अ प्रॉब्लम. मैं बाहर जाता हूँ तो आई डोंट लाइक टू वेयर वेरी थिक आई मीन टाइट टी शर्ट या स्लीवलेस मैं नहीं पहनता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा करके लाइक मोस्टली आई वेयर वेरी ओवरसाइज या लूज टी शर्ट्स वगैरह. बहुत मतलब आई थिंक जब से बॉडी बिल्डिंग चालू किया उसके पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था बट जब से मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया थोड़ा सा बॉडी बनने लग गया तो लोग मुझे रास्ते में ऐसा देखते हैं तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ. सो आई ट्राई टू वेयर एंड आई फील वेरी सेफ व्हेन आई वेयर ऐसा लूज टी शर्ट्स. बिफोर दैट विल बी टेकिंग आवर Carnage pre-workout from Big Muscle. 1 scoop लूँगा मैं तुरंत and will add that 1 scoop. With that I'll be adding 1 gram of
पिंक हिमालयन सॉल्ट जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा पम्प। आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, आई थिंक 1 घंटा मैं लेट हूँ जिम के लिए। सो आई विल बी प्रिसाइज टू गो टुडे बिकॉज मेरा जो सेकंड मील था चिकन एंड राइस, वो खाने के बाद बहुत टाइम लग रहा था डाइजेस्ट होने के लिए। सो मैंने क्या किया, थोड़ा सा और रेस्ट ले लिया 1 घंटा। सो आई एम नाउ फीलिंग वेरी गुड टू गो एंड वर्क आउट। सो आई विल गो कम बैक in an hour and catch up with my next of the आगे का जो भी meals I need to catch up because मेरे पास 4 मील बड़े बड़े बाकी हैं मेरे। so I need to catch up and finish by 10:30 11 max because उसके बाद मुझे सोना है जल्दी so that I can wake up tomorrow early and start my day. so I don't know ये डेली व्लॉग्स वाला चल रहा है कि नहीं, बहुत टाइम से करने का कोशिश करता हूँ, नहीं होता है, थोड़ा सा आता है, कभी कभी चल जाता है, फिर बाद में मैं रुक जाता हूँ, एनी विच वेज वो सब चीज़ें हैं। बट येस, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा। इफ यू गाइज वांट यू कैन यूज माय कोड BMJIJO टू गेट सम डिस्काउंट आल्सो। एंड या, सो डेली व्लॉग्स वाला अगर है कोई जो वांट टू वॉच दीज थिंग्स, कमेंट डाउन करके बताओ। आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट 5 मिनट का या 6 मिनट का, एटलीस्ट आई विल पुट 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में एटलीस्ट डेली व्लॉग्स डालूँ तो डालूँ। आई वुड डू दैट। सो सी यू गाइज। What a beautiful weather, guys. अभी दोपहर के 3 बज रहे almost. Beautiful weather. I have never come across this beautiful weather because हर वक्त most of the time it's very hot. मैं ये टाइम पे बाहर निकलता हूँ तो मैं भीग जाता हूँ। इनफैक्ट ये टी शर्ट पूरा गीला हो जाता था। तो but we are in a place, सरगम क्लब। अभी फ़िलहाल के लिए तो दिस काइंड ऑफ वेदर इज़ समथिंग विच आई लव द मोस्ट एंड आई एम एंजॉइंग। जितना टाइम के लिए है ये, विल बी एंजॉइंग दैट। ऑलराइट गाइस, पहुंच चुके हैं जिम में एंड वी स्टार्टेड विथ आवर चेस्ट एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज कर रहे थे। पहला था केबल फ्लाइज, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट टू वार्म अप, और उसका 4 सेट हमने किया अराउंड 12 to 15 रेप्स। सेकेंड एक्सरसाइज था फ्लैट प्रेस, जिसके अंदर ये मशीन मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये कन्वर्ज होता है, ऊपर आते टाइम स्क्वीज़ करता है। वो नेगेटिव स्लो था, ऊपर आके 1 सेकेंड होल्ड और नीचे 1 सेकेंड होल्ड करता हूँ मैं। इसका हमने किया 4 सेट वर्किंग सेट एंड अगेन 12 to 15 रेप्स किया एंड नॉट पुशिंग टू मच हैवी वेट बट कंट्रोल में जितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ही हमने पुश किया बट नॉट लूजिंग द फॉर्म। मूविंग टू द शोल्डर का पहला एक्सरसाइज, वी स्टार्टेड विद शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस अभी ऑलरेडी मेरा काफ़ी वार्म हो चुका था मेरा चेस्ट मूवमेंट के बाद, मेरा एंटीरियर शोल्डर। तो आई प्रेफर टू डू ओनली 1 सेट ऑफ वार्म अप सेट और उसका हमने किया अराउंड 8 से 10 रेपिटेशन वार्म अप। फिर मेन सेट हमने किया 2 प्लेट के साथ 45-45 ईच साइड, उसका हमने किया 3 वर्किंग सेट एंड दैट टू अराउंड 12 to 15 रेप्स हमने किया इसका एंड बाय डूइंग 3 वर्किंग सेट्स। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी डिड लैटरल रेजेस। इसका हमने किया 3 सेट, वर्किंग सेट किया अराउंड 12 से 15 रेपिटेशंस। इसके बाद मैंने श्रग्स भी किया था 8 से 10 रेपिटेशंस के रेंज में विद। ऑलराइट गाइस, वर्कआउट हो चुका है खत्म, हैड अ ग्रेट पुश सेशन। काफी सोर हो चुका है ऑलरेडी, काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे। सो आई हैड माय पोस्ट वर्कआउट शेक विच वाज बिग मसल का। सो पोस्ट वर्कआउट शेक लिया हमने, उसके बाद मैंने खाया अराउंड 300 ग्राम चावल बिकॉज यू नीड कार्ब्स टू गेट दैट फुलनेस, राइट। सो मैंने कार्ब्स खाया। कल तक क्रिसमस, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया बिकॉज आई स्टे अलोन, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट ओवर हियर, इट्स बीन आई थिंक 8 से 10 साल हो गया है आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड लाइक कंसिस्टेंटली क्रिसमस या एनी फेस्टिवल। तो आई थिंक एक या दो बार मैं कुछ शो के बाद, अक्टूबर या नवंबर में इंडिया में शो होता था, उसके बाद मैंने क्या किया कि आई वुड गो टू लाइक बैक होम एंड देन वहाँ पर जाके फिर आई वुड डू द क्रिसमस सेलिब्रेशन। पर वही था कि 1 या 2 बार, पर ज़्यादा कुछ, इट्स बीन अ लॉट ऑफ ईयर्स दैट आई हैवंट सेलिब्रेटेड माई क्रिसमस वगैरह। तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये it's kind of a sacrifice, like you either want to celebrate and give family time and then all of those things। but अभी मैं दुबई में हूँ, पहले तो मैं चलो बॉम्बे में रहता था, तो अगर शोज नहीं है तो I would go back home and then do it, but now I stay in Dubai so it's more a little bit difficult to go back home and do this thing। so
those are the small sacrifices which you make. I think not small sacrifices, because eventually इतने टाइम में मैंने ये एक रियलाइज़ किया है कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज क्या होता है कि जब हम घर पे रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता, बट आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, they are getting not that strong mentally, physically, and this thing. Mentally तो मैं नहीं बोलूँगा, physically they are not that strong like before. हमको लगता था our dad is the superhero, हम वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. मतलब आज भी I know that, but he and my mom can do a lot of things, but कहीं ना कहीं पे you know that they're getting old and all of those things. But that being said, I miss all of those things. And मिस मतलब मैं मिस नहीं बोलूँगा वैसा, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ ऑल्सो इन टू द सिचुएशन दैट कि अरे आई एम नॉट डूइंग like I should be at home and this thing, because these are the sacrifices which you make. So anyway, that being said, Christmas was kind of okay. I thought of going to church, but यहाँ पर दुबई में there's only two church, and which is always too crowded. And तो मैंने decided not to go it, because church में हम घुस नहीं सकते. You have to go outside, road में खड़े रहो, all of those things. So I didn't wanted to go that, and I'm not a guy who regularly go to church वगैरह. So I choose not to go. I prayed at home, and that being said, Christmas वैसा था. इसी के साथ में I think आज का video I want to end up, and let's see the daily thing. Yeah, weekly more videos, at least weekly 3 videos. A lot of people commented on my last video में that keep a videographer वगैरह. It's difficult to get a videographer here. Even अगर मिला तो they charge a lot of money for one video. India का I think they charge like 20-25,000 for one video. रहे साथ में and shoot करके फिर edit करके if they want to give me. So rather I would just do it by myself. जितना हो सके यार guys, जैसे मैं डाल रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है, I'm trying to do it. If you guys can appreciate that, it will be great. If you can like, comment and subscribe. काफ़ी टाइम हो गया, the followers is not growing that much, but not focusing on that too much, because ठीक है हुआ तो हुआ, but as long as you guys are happy to see me, जो भी लोग हैं, और will make it work. So anyway, that's not a big issue. That being said, आज का vlog हम यहीं पे ख़त्म करते. We'll see you guys in the next video. Let's see, maybe something different we'll talk about. कुछ है आपको बताना, make sure that कि आप comment करके बताओ मुझे, and then we'll bring something good. Yeah. So that being said, Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Wolfgang in power.